Hello everyone. Today I am with Kashish Patni. He is an equity research analyst. Did you got into equity research? So it's been a long journey and a very wonderful journey, I think. So it was the time when there was a COVID, which would have taken place miserably, as we all know. So what I noticed, like there were only two to three things going on. एक तो बस market चालू थी, एक work from home culture was promoted, and of course the medical line was open. What is an equity research analyst and what are the skills required for becoming an equity research analyst? One of the skill is financial statement analysis. Ratio analysis is another thing. Advanced ratio analysis. बाद में हमें valuations सीख आना चाहिए. Apart from that, proper management analysis. You're basically saying कि you have to learn how to do proper analysis of anything from a Yeah. micro thing to a macro thing. That's the Yes. work of an equity research analyst, and you require analytical skills, high observing skills, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, रेशियोज के बारे में नॉलेज होना चाहिए. इज मैथ्स नेसेसरी? सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इज मैथ्स नेसेसरी फॉर बिकमिंग एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट? मार्केट में राइट नाउ इफ यू सी, last month I would say there was a very big selling by FIIs, a very high selling actually, and now in the last few weeks the market is reaching new heights. So what is your thought, what is your opinion as an equity research analyst? बहुत बड़ी बाइंग देखी हमने. एक तो एग्जिट पोल के रिजल्ट से मार्केट को रिएक्ट करते हैं देखा. फिर उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन खड़ी की थी, तो उन्हें वो भी बायबैक करनी पड़ी, क्योंकि उनकी पोजीशन उन्हें शॉर्ट कवरिंग करना था बेसिकली. Equity research analyst आप अभी हो and you are also doing courses, and the people who are watching this video also wants to do different courses ताकि वो भी इस फील्ड में घुस सके. तो what courses do you prefer, will you recommend for this? Because आपने जो इतने सारे skills बताए, what do you think कि वो skills कहाँ से acquire हो सकते हैं? So या let's move ahead. Let's talk about the job packages and the job levels. Which sectors are you bearish on? Hello everyone. Today I am with Kashish Patni. He is an equity research analyst. Welcome Kashish. How are you? हाय प्रशांत, थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम. आई एम डूइंग गुड. हाउ आर यू? I am great as well. So let's start our discussion without any further ado. Kashish, please introduce yourself. Hi everyone. So I am Kashish Patni. I am from Aurangabad, Maharashtra. It's currently been renamed as Chhatrapati Sambhaji Nagar. If I speak about myself, I have done BCom and LLB. I am also a company secretary student. Apart from all these things, I am currently doing a job as a equity research analyst at Morningstar. Great. So let's begin. How did you got into equity research? So it's been a long journey and a very wonderful journey, I think. So it was the time when there was a COVID, which would have taken place miserably, as we all know. So what I noticed, like there were only two to three things going on. एक तो बस market चालू थी, एक work from home culture was promoted, and of course the medical line was open. सो दैट वाज द टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस विद द मार्केट. सो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, बट या कम टाइम में लर्निंग काफ़ी अच्छी रही है ओवर द टाइम. सो 2020 में आई गॉट स्टार्टेड. सो इनिशियली जस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली जैसे होता है, एक बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, आई ऑल्सो स्टार्टेड नोटिसिंग द मार्केट. एंड देन आई सम अपॉर्चुनिटीज़ मेरे होम टाउन में ही, जहाँ पे आई डिड सम इंटर्नशिप्स. सो इट वाज अ गुड इक्विटी रिसर्च फर्म्स. सो वहाँ पे मैंने एक डेढ़ साल ऐसे दो तीन इंटर्नशिप्स की छोटी मोटी. एंड लेटर ऑन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मॉर्निंग स्टार, एंड नाउ आई एम इन मुंबई. Okay. So let's move ahead. Kashish, what is an equity research analyst and what are the skills required for becoming an equity research analyst? Yeah, so
to become an equity research analyst there are so many skills required means there's some myth like अगर आप देखोगे so लोग कुछ स्टॉक्स खरीद लेते हैं लोगों को थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड पीपल थिंक यार अब हम इसमें करियर कर लेते हैं एंड एवरीवन थिंक्स इन दैट डायरेक्शन बट to become a proper professional equity research RA and all those things, there are a lot of skills required. Means if I start with first, so मैं मेरी बात करता हूँ एक and this is the most common skill which एक इक्विटी रिसर्च आर में देखी जाती है दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सो एक सीए ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है बट उसे प्रॉपरली रिसर्च करते आना आना चाहिए हमें अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं असेट्स में लाइबिलिटीज में एक सेल्स पे कमेंट्री होती है रेवेन्यू ब्रेकअप पे सो व्हाट आर दोस थिंग्स कुछ क्वार्टर्स में क्या हो रहे हैं so everything needs to be covered very smartly so of course one of the skill is financial statement analysis ratio analysis is another thing advanced ratio analysis बाद में हमें valuations सीख आना चाहिए apart from that proper management analysis which is also known as corporate governance that's the fourth skill then the most favorite one of favorite all these things into a storytelling हमें अगर प्रॉपर सारी हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स को are not able to put into a storytelling then if it's of course of no use apart from that sector analysis will be there for sure because what your company is doing that is one thing but apart from that what that sector is doing that's another thing बट सॉरी इट्स नॉट द एंड उस सेक्टर का उस इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है सो यू हैव टू ऑल्सो डू मैक्रो एनालिसिस एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू स्टडी मैक्रो एनालिसिस कंट्री एनालिसिस भी करना पड़ेगा क्योंकि कुछ सेक्टर के लिए कुछ चीज़ अच्छी है तो कुछ सेक्टर के लिए कुछ चीज़ नेगेटिव भी है फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यूएस डॉलर्स बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल सो इट विल बी ऑफ कोर्स गुड फॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर बट ऑफ कोर्स दूसरे कोई सेक्टर्स के लिए इट विल बी बैड फॉर एग्जांपल स्पेशलिटी केमिकल्स क्योंकि ज़्यादातर इंपोर्ट उसका चाइना से होता है सो एंड उन्हें पेमेंट हम लोग यूएस डॉलर्स में देते हैं सो हमें ये सब छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इन डिटेल पता होनी चाहिए कि यार कौन-सी चीज़ किस सेक्टर के लिए अच्छी है, नहीं है। बहुत चीज़ें मैटर करती है। लोग एक छोटा-सा वड़ा पाव खरीदने के वक़्त लोग बहुत बार सोचते हैं कि यार किसका खरीदें, एक जंबो किंग का खरीदें या महाराष्ट्र में जंबो किंग देयर इज़ अ ब्रांड जंबो किंग, देयर Okay. अनदर ब्रांड इज़ छोटू, देयर इज़ वन ब्रांड गोली। So I don't know मीन्स देयर आर वियर्ड नेम्स एंड सो मेनी ब्रांड्स सो पीपल थिंक यार वड़ा पाव कहाँ से लेना है, राइट? बट पीपल आर लाइक एट द सेम टाइम कि भाई 40,000 पड़े हैं मेरे पास एंड वेयर शुड आई इन्वेस्ट दैट मनी तू बता फर्स्ट सो आई गेस दैट diligence will will sort the difference I guess I think that's it for this Okay, so you're basically saying कि you have to learn how to do proper analysis of anything from a yeah micro thing to a macro thing. That's the yes work of an equity research analyst, and you require analytical skills, high observing skills, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, रेशियोज के बारे में नॉलेज होना चाहिए. वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू हियर इज, आपने बोला कि वैल्यूएशन आना चाहिए, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एडवांस लेवल वैल्यूएशन और द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूएशन? No, the basic understanding valuations, not the ओके. high ones. जितना एक इक्विटी रिसर्च आरए को पता होना चाहिए बस उतना ही एंड दैट कैन बी कवर्ड थ्रू वेरियस कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज आज अवेलेबल है ओके. यूट्यूब्स पे एंड इंडिविजुअल एकेडमीज का तो दैट्स मैनेजेबल दैट्स नॉट एन इशू ओके. वुड यू रिकमेंड वैल्यूएशन के लिए जो अश्वत्थ दामोदरन की यूट्यूब पे सीरीज डली है, दैट वुड बी गुड? अश्वत्थ दामोदरन इज द फाइनेस्ट इन द वैल्यूएशन ओके. बट उनका जो इंग्लिश है मैंने काफ़ी लोगों से सुना लोग उनसे इनलाइन नहीं कर पाते पता नहीं क्यों ओके. सो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं पर्सनली क्योंकि एट टाइम्स हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते एंड देन वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन Okay. So for people, it can be referred, but there are other options available as well, right? यस ऑफ कोर्स Okay. So let's move ahead. I would like to ask you, ki, is maths necessary? Since we are talking about skills, I would like to ask you, ki, is maths necessary for becoming an equity research analyst?
नो मीन्स नॉट डायरेक्टली नो। आई एम मैंने नॉट बहुत टॉकिंग क्विक अबाउट आंसर द दिया। बेसिक लेवल कि अरे प्लस माइनस भी नहीं आता है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली टू हाई बी लेवल। ऑनेस्ट मैथ मेरी खुद खराब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मुझे आज तक ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि यार मैथ्स खराब है तो आई एम सफरिंग अ लॉट, आई एम सफरिंग अ हेल लॉट, ऐसा नहीं हुआ। बेसिक्स तो सबको ही पता होती है ओवर द टाइम, मतलब कॉमर्स में आए हो तो इतना इश्यू नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर एक साइंस स्टूडेंट है जो इस फील्ड में आना चाहता है, उसे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएँगी। यहाँ पे जो मैथ्स है ना, ये नंबर वाली मैथ्स इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सी डिफरेंट है। मतलब स्मार्ट तरह की सी मैथ्स है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ऐसा कन्वर्सेशन आएगी कि लाख करोड़, कोई लैक्स इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, कोई करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, एंड जो रेशोज रहेंगे, जो बाकी चीज़ें रहेगी, जो हम कंपेयर करेंगे तो हम वो काफ़ी स्मार्ट तरीके से करेंगे। सो इतना इशू तो नहीं आएगा टू बी ऑनेस्ट, एंड ये हमारा फिर डेली टॉक भी बन जाएगा ऑफ कोर्स एट द सेम। सो ये नंबर्स में मजा आएंगी ये जो मैथ्स है यहाँ पे। सही है, चलेगा। सो या लेट्स मूव अहेड। हियर आई वांट टू आस्क यू कि मार्केट में राइट नाउ इफ यू सी, last month I would say there was a very big selling by FIIs, uh, a very high selling actually, and now in the last few weeks the market is reaching new heights. So what is your thought, what is your opinion as an equity research analyst? सो इफ यू सी, जब भी इलेक्शन रिजल्ट्स कहाँ पे आते हैं कोई कंट्री में, सो इट्स द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द एफ आई आईज, जहाँ पे बिफोर इलेक्शंस एफ आई आई टेन टू गो लाइट। सो इस बार भी सेम एफ आई आई वेंट लाइट एज वेल, एक्सेप्ट फॉर साउथ कोरिया एंड जापान। एफ आई आई वेर इन द प्रॉफिट बुकिंग मोड। सो उन्होंने ऑल वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया, जहाँ पे इलेक्शंस लाइंड अप थे, उन्होंने सभी तरफ प्रॉफिट बुकिंग की एट द फर्स्ट साइट। Okay. देन वो लोग इतने बियरिश हो चुके थे हमारे मार्केट पे कि उन्हें लगा कि फिस्कल पॉलिसी भी सही से नहीं आएंगी, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी, व्हाट विल हैपन टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। सो दैट वेर देयर क्वेश्चंस। सो हमने ये देखा कि 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स विच वाज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग, उन्होंने वो शॉर्ट्स किए थे। एट Okay. द सेम टाइम ये चीज़ हुई थी फ्राइडे के दिन, आई गेस दैट वाज 31 मई, एंड Okay. देन सैटरडे संडे में एग्जिट पोल के, so that was another story, exit poll results, which made the market rocket on Monday. Nifty was, I guess, 800 points gap up or 700. I might be wrong. I need to check the data once. So that went the story. It Monday was के around दिन हम 800 लोग, points. it was the rocket, it was the rocket, and हुआ ये जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, द अनदर स्टोरी, अब इतने सारे शॉर्ट्स खड़े थे उनके, उन्होंने की थी, इतने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े थे, टू बी वेरी प्रिसाइज। देन आफ्टर 9:15, 9:16, 9:20 उन्हें वापस शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी, तो उन्होंने वापस इतना बड़ा बायबैक किया क्योंकि उनको वो पोजीशंस कवर करने थे। सो हमने बहुत बड़ी बाइंग देखी। हमने एक तो एग्जिट पोल के रिजल्ट से मार्केट को रिएक्ट करते हुए देखा, फिर उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन खड़ी की थी, तो उन्हें वो भी बायबैक करनी पड़ी क्योंकि उनकी पोजीशंस उन्हें शॉर्ट कवरिंग करना था बेसिकली। एंड द क्वेश्चन माइट अराइज कि यार उन्होंने पहली बात तो ये किया ही क्यों, उन्होंने ये सब क्यों सोचा, उनके इक्विटी में भी पोजीशंस खड़े होते हैं टू बी ऑनेस्ट, वो बहुत सारे थे। तो वन ऑफ द रीजन माइट बी दे कुड बी हेजिंग दैट इक्विटी पोजीशंस अगेंस्ट दैट शॉर्ट कवरिंग। एंड ऑफ कोर्स द इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। सो ये सब हुआ लास्ट वीक, बट the best thing which I learned all from all this, like never trust someone who is not सही भी आ रही है। अरे मेन अरे। स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा इसमें एक्चुअली रीजन था, टू बी ऑनेस्ट। द Okay. मार्केट मेड लाइक बहुत highly it dumped, which we all seen, and on the 4th June it was highly dumped. So the best thing came out from all out of this on 4th June, basically on the result day, एफ आई आई सेल कर रहे थे, डी आई आई सेल कर रहे थे, एंड देर वॉज वन पीपल दैट वॉज रिटेल पब्लिक हु वर द बायर्स। रिटेल पब्लिक ने उस दिन 21,000 करोड़ की नेट बाइंग की ऑन द 4th जून, Okay. एंड एस आई पी बुक हमारी उस वक्त में 19,000 करोड़ की थी, जो एक मंथ का डेटा था। सो Okay. 19,000 करोड़ वॉज द मंथ का डेटा,
एंड हमने 4th जून पे जब इतनी बड़ी सेलिंग हुई, जहाँ पे एफआईआई वे सेलिंग, डीआईआई वे सेलिंग, ओनली नेट रिटेलर्स वर देयर हू वर द बायर्स। हमने हमारा 1 मंथ का डेटा हमने सिर्फ 1 दिन में एक बाय ऑन डिप जिसे कहते हैं, तो हमने वो चीज़ कर दी थी यहाँ पे 4th जून के दिन। ओके। सो एंड व्हाट अबाउट द रीसेंट हाइज, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? I think the history is repeating in itself. Like post election results, जैसा समझता है कि government stable है, so market is going high. I think that is the only reason I can see. Apart from that, there's a rumor recently going on last week कि everyone were expecting a big crash, a crash हम्म। bigger than even probably 2008. So I think all those were rumors, and that can be seen even with the numbers today. Today, Nifty, today Sensex has also crossed 80,000 mark, and Nifty is also trading at currently all-time high levels. So yeah, I think. Can budget be a reason behind this? I don't think so. Even after budget, if budget market can even celebrate budget as well. So the rally can even go up, or the rally can even like I am, to be honest, technically expecting I am a little bit of profit booking, and again I am expecting market to go high because technically the market is looking strong as if now. Okay. So you're basically expecting a So bit of correction and then reaching a new high. yes, yes, definitely. Okay. Uh, I'm sorry, I'm talking about market. It get flown into that. One additional question, one last question about the market for now. Uh, Yeah. Anything you are expecting from budget? Actually, I am just following the trend which the government is following. I am bullish on infrastructure sector, the defense Okay. one, and the railway, and of course PSUs. So you are expecting something favorable for these. यस एंड Okay. अगर हमें टैक्स में रिलीफ मिल जाता है तो फिर तब तो द क्या ही पार्टी कहना। अवेट्स यस। तब वो जो वीडियो फेमस हुई थी क्वेश्चन की, जो इन्वेस्टर ने पूछा था निर्मला मैडम को, ही विल बी वेरी हैप्पी टुडे कि मेरा पूछना सफल हो गया। टैक्स इज एक्चुअली अ बिग पेन टू बी ऑनेस्ट टैक्स टेरिबल अब तो एफ एन ओ पे लगा रहे प्रॉफिट में हार्डली देर आर in numbers not in percentage like 2 to 3% is the winning percentage. I don't know exact percentage. 95% traders are in loss. यस, इट इज And एक्चुअली अराउंड 1%, जितना मुझे स्टेट्स याद है। अराउंड yeah, 11% आर डूइंग एफ एन ओ, उसमें से आई थिंक 1 or 2% आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। इफ yeah, आई डोंट and रिमेंबर now प्रॉपरली बट even आई they थिंक are दैट्स द फिगर। they are in the umbrella of tax. नो कमेंट्स ऑन दैट। लेट्स मूव अहेड। That's a bit unfair, I think. Yeah. Equity research analyst आप अभी हो, and you are also doing courses, and the people who are watching this video also wants to do different courses ताकि वो भी इस फील्ड में घुस सके। तो what courses do you prefer, will you recommend for this? बिकॉज आपने जो इतने सारे स्किल्स बताए, what do you think कि वो स्किल्स कहाँ से acquire हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपने अगर कोर्सेज किए तो कहाँ से किए? एंड इफ इट इज़ कंफर्टेबल विद यू, आई So वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कॉस्टिंग भी बताओ कि आपको कितना कॉस्ट लगा है। yeah, I'll do that. No issues in it. So if I go first with my course, which I have personally purchased, that was the equity research cohort. So it was from the Parth Verma sir from the Valuation School. हम्म। From that, there's another course which I'm planning to pursue once I've completed with this course. That is Advanced Valuation and Financial Modeling one. Okay. Again from the Path sir because I'm super happy by the way he's teaching the concepts, and I have seen changes in myself, to be honest. Like I'm been into the market from last 3 to 4 years, and I am whatever learning in the courses today through his mentorship. So that is basically getting add on to my skills, nothing else. Okay, and So how it's much a did it cost you? so for the equity research cohort, it costed me around 9,000 rupees, Okay. and like
they might be changed into the fee structure according to the time stamps. So मैंने तो 9,000 पे किए थे and एडवांस सॉल्यूशन मैं प्लान कर रहा हूँ that is around 17,000 या 19. So I need to check that once. So if you get these courses well equipped, so I think you are good to go. Apart from that, SEBI RA, जो NISM 15 सर्टिफिकेट है, हाँ. so that will be the cherry on the cake. Of course, there are so many certificates which we'll definitely discuss in the coming questions. So yeah, I Okay. think yeah. So let's move ahead. Let's talk about the job packages and the job levels. Since you are also at the start of your career, I won't expect you to have the experienced knowledge, but uh, what knowledge do you have about the job levels, about the job packages available in India? So see, there are like first initial job roles are like sell side roles. Then people starts with the sell side first, and then people move to the buy side. It's not necessary like even buy side में भी freshers की role आती है. But in the buy side or in the sell side, research का काम तो रहता ही है. It's just the fancy job titles basically. Apart from that, fundamental analyst की भी roles होती है. So different teams are there, and that's how the market runs. Would you First of tell all. us a bit about what is sell side and what is buy side? दोनों में रिसर्च होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट इन सेल Just a साइड basic थोड़ा सा idea. काम इन सेल साइड दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली मुझे एक चीज़ अच्छी याद आ गई इसमें बातों बातों में ऐसा समझ लो कि रिपोर्ट आज आपके हाथ में आ रही है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारी कन्वर्सेशन होती है कि यार टाटा मोटर्स पे व्हाट व्हाट्स द गुड नेम ऑफ एनी फर्म Motilal Oswal. मोतीलाल ओसवाल या This is not a मुझे paid मोती promotion, सच guys. मुझे एक्चुअली मोती सच ज्वेलरी याद आया अरे मुझे अरे. मोती सच ज्वेलरी का आईपीओ याद आ रहा था आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट सो फॉर एग्जांपल अगर मोतीलाल की एक रिपोर्ट आ रही है मोतीलाल इज टेलिंग कि यार बाय कर लो टाटा मोटर्स राइट एक राइट साइड में एक रिपोर्ट होता है जहाँ पे राइट साइड में लिखा होता है बाय सीएमपी टारगेट तो ये रिपोर्ट पब्लिक में आई है तो दैट इज अ सेल साइड रिपोर्ट Okay. ऐसा समझ लो कि एक सेल साइड फर्म है, उस सेल साइड रिपोर्ट की ये फर्म है एंड ये रिपोर्ट आपके हाथ में आई है। जो भी रिपोर्ट आज पब्लिक में अवेलेबल है दैट इज़ अ सेल साइड रिपोर्ट एंड जो भी रिपोर्ट आज पब्लिक में नहीं आई है दैट इज़ अ बाय साइड रिपोर्ट। बाय साइड रिपोर्ट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रिपोर्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट होता है। सो इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट को एक हमने कॉन्टैक्ट किया एंड वी हैव आस्क्ड हिम और हर कि यार हमें फॉर एग्जांपल आईटीसी के बारे में डिटेल्स चाहिए। सो हमने हमारा स्पेसिफिकेशन बता दिया, उस पर्सन ने हमारे लिए वर्क कर दिया एंड उन्होंने हमें ये रिपोर्ट दे दी। तो व्हाट रिपोर्ट वी हैव गॉट इज़ अ बाय साइड रिपोर्ट, राइट? सो दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स बट ऑफ कोर्स बाय साइड एंड द सेल साइड बोथ आर द काम सेम ही होता है। द अगेन दैट्स जस्ट द जॉब टाइटल्स व्हिच आई एम टेलिंग Okay. So एंड जितना एज़ मेरे को रिगार्ड्स समझा, द या just to summarize, sell side is basically when you are working at a broker firm which issues the research reports ब्रोकर फ्रॉम publicly, right? पब्लिकली या And the buy side report would be the work, the research reports that the big bulls, or should I say big investors, pay for, and ask someone to ask a boutique firm, maybe Morningstar, to make a research report and submit it, right? And या डेफिनिटली independent analyst would be the one who is working independently, is not connecting to any firm, and is asked to make a research report and is making a report and submitting that, right? यस डेफिनिटली ऑफ कोर्स Okay. Apart from that, if you see about the packages, so the packages starts from 4 lakh for a fresher, and of course, like every other field, it's a sky is the limit here, here as well. Okay. Can we ask your package currently? No, it's confidential, of course. Okay. Give us a round figure, ballpoint figure. I'm around like to be honest, I'm around. I'll just say the range, okay? I'll not Not an say issue. anything. Our audience I'm will like calculate automatically. audience is super smart. From 5 lakh to 8 lakh in between of that, to be honest. Okay, you have given a bit of big range, huh? Let's
I don't Move think ahead. so. That's a big range. Let's move ahead before we start digging more. Uh, Yeah. Last question actually. Of course, just a moment to add here. Okay. Like there are like multiple projects, multiple teams, and I'm not like there are multiple teams, multiple projects. So I'm not currently into the core equity team, right? Like on this moment when we are recording this podcast, so I'm not into Let the me core specify equity the date team. as well. We are recording it on 3rd of July. So right now मैं थोड़ा सा different project में हूँ, but of course my end goal and everything, मतलब I'll be here only in the equity market, so that's the for sure thing, and that's why I think you have invited me thinking Yes, like yes, yes. yeah. That's the major reason. Uh, let's move ahead. And actually, बातें करते करते पता भी नहीं चला. We have come to the end of our session. Uh, Last question. It's about market again. Any specific sector, any specific industry, any specific stock would you like to recommend, or which the the analyst community or the analyst industry, the buy side analyst industry is looking at? I was expecting something like this only कि लास्ट में कोई टिप तो देनी पड़ेगी ऑडियंस को. Yes, So yeah, actually I was prepared somewhere for this question to be honest. So just give me a minute. sure. Yeah. So the tip will be if you see the market ना right. So जहाँ पे इंडिया था right, जहाँ पे पहले यूएस मार्केट था in the 1980s, वहाँ पे इंडिया आज स्टैंड कर रहा है. So we are on the verge of flying. इंडिया इज लिटरली उड़ने के लिए तैयार है हम लोग, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक स्टेबल अलायंस है, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटैक्ट है. सो दैट इज वन थिंग फॉर श्योर, राइट. एंड अगर आप देखोगे, सो द मनी हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम ऑल द वे. इन द 1800 इट वाज यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, सो 1800 में द मनी वाज रिवॉल्विंग यूरोप, राइट. मैं एक पहले बेस बना रहा हूँ बिकॉज आई मूव डायरेक्टली ऑन द टॉपिक. Not an So issue. just allow me 1 minute. Like in Sure, the sure. 1800, the money was traveling around European countries, right? There was European colonization. In the 1900, the money traveled to US, and 1980s में, late 90s में पूरा पैसा यूरोप यूएस कंट्रीज में गया. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड यूएस एज अ डेवलप्ड कंट्री टुडे 1900s में. एंड if you look today in this century, the money is traveling in the Asia, right? So एशिया में इंडिया इज द मार्केट. तो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग. जहाँ पे यूएस 1980s में खड़ा था, वहाँ पे इंडिया आज खड़ा है. सो मुझे इसलिए मैंने एक बेस बनाया, मैंने जो एक पहली लाइन कही, बिकॉज लोगों को ऐसे नहीं लगना कि यार क्या कह रहा है करके, ये यहाँ मार्केट गिर रही है, एफ आई आई इज बहुत बियरिश है. एंड व्हाट दिस पर्सन इज सेलिंग, राइट. सो दैट वाज माय मोटिव. सो इफ यू विल सी, अगर अभी हम लोग अगर एफएनओ में चले गए, अगर अभी हम लोग क्रिप्टो करेंसीज में चले गए, अभी अगर हम लोग यूएस मार्केट में चले गए, बॉन्ड मार्केट में चले गए, या अभी हम कहाँ पे भी चले गए ना सर, कहाँ पे भी बॉस अगर हम चले गए, सो विल लूज दिस रैली. And the tip will be this only: stay invested in the Indian equity markets. Even ये जो सेक्टर है, इट्स बूमिंग. मैंने खुद डिफरेंट कोर्सेज किए, एलएलबी एंड एवरीथिंग. यहाँ पे एक डेली लर्निंग, एवरी डे मार्केट नेवर फेल्स टू टीच यू न्यू थिंग्स, दैट्स फॉर श्योर. एंड अभी मार्केट ग्रो होने के लिए रेडी है. सो जितना तुम यहाँ पे इन्वेस्टेड रहोगे इक्विटी में, कैश में, इंस्टेड ऑफ क्विक रिच स्कीम, सो उतना ज्यादा पैसा तुम्हारा यहाँ पे बनेगा. थिंक फॉर द शॉर्ट टर्म, थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म, मेजर विद द लॉन्ग टर्म ओनली. जस्ट स्टे इन्वेस्टेड, पिक द गुड सेक्टर्स. मैंने तो मेरे सेक्टर्स पहले ही बताया, आई एम बुलिश ऑन विच सेक्टर्स. दैट्स infra and railway, defense, PSUs, Then power. let's switch the question. Which sectors are you bearish on? No, like not bearish Of course, actually. guys, Like this is a personal opinion. It is not a recommendation. I am not bearish, but I am a little bit thinking EV sector जो है ना, EV sector का बहुत ज़्यादा hype हो चुका है market में, right? This is just my way of thinking. I might be very
टेरिबली रॉन्ग बट आई कैन बी वेरी राइट एट द मोमेंट। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत हाई है, मैं जो कहने चाह रहा हूँ। अगर ईवी सेक्टर को अगर मैं देख रहा हूँ ना, सो ईवी की नैरेटिव मार्केट में 2016 से चल रही है Hmm. एंड इट्स 2024। ईवी की नैरेटिव आज भी बेचे जा रही है। आई थिंक ईवी विल बी द ईवी विल टेक द बैक सीट एज वेल। ईवी बैक सीट पे ही रहेगा इस बार भी, बिकॉज अगर हमें ईवी को अगर हमें फ्रंट सीट पे लाना रहता था ना, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन था, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज, सो हमारे जो पूरे रोड्स है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, तो वो और ऑल टुगेदर डिफरेंट सेक्टर पे रहता था, ऑल टुगेदर लेवल पे रहता था एक। तो वो पूरा एक ईवी के डायरेक्शन पे रहता था। एंड अगर हम लोग सोचे, ईवी के लिए हमें फिर बैटरी स्टोरेज भी करना पड़ेगा, बैटरी रिसाइकल करना पड़ेगा। ये एक पूरी नवी इंडस्ट्री बन सकती है, पूरी एक नई इंडस्ट्री बन सकती है ये। सो हमारे पास अभी इन सब चीज़ों के लिए अभी वी आर नॉट लुकिंग, आई थिंक जितना मुझे समझ आ रहा है। एंड these things will take time. I mean, we are looking on it definitely, but these things will take time. So अगर अब अभी अगर हम लोग सस्टेन की बात कर ले, अगर अभी हम लोग ईवी की बात कर ले, so I think this will take the back seat। इन सबको टाइम है अभी। एंड Hmm. दिल्ली दूर है बेसिकली अभी तो। सही है। सो या आई थिंक जो बाकी तो बस वही है, स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि अब मजा आने वाली है टू बी ऑनेस्ट। Okay. And every day the market is making new highs actually. We are looking it from the past few weeks. 2024 वाज लाइक अ वेरी गुड ईयर फॉर लर्निंग। लाइक अगर आप जैसे अभी हमने अब आपने 2 बार कहा, इसलिए जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स अगेन। इंडेक्सेस आर reaching all time high but not the portfolio at the same time। Hmm. Portfolio are still struggling a lot and indexes are like all time high। अगर Agreed. आज आप भी देखोगे ना, आज आज की अगर मैं बात कर लूँ, सो एच डी एफ सी बैंक की एक न्यूज़ आई थी, उसमें एफ आई आई की होल्डिंग 53 पॉइंट समथिंग परसेंटेज निकला था। सो Okay. एच डी एफ सी बैंक वॉज अप एंड ड्यू टू विच बैंक निफ्टी एंड निफ्टी वॉज अप। थोड़ा बहुत सपोर्ट आईटी का मिल गया। सो इंडेक्सेस वेंट हाई एंड द मार्केट ओवरऑल वेंट हाई। जबकि कल का जो सेकेंड हाफ था, उसमें मार्केट वॉज बियरिश, निफ्टी वॉज डाउन बाय 500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। सो जो लोगों ने आज मॉर्निंग में ही जिन्होंने पुट लिए थे सब, खत्म। सो वही हो रहा है। लाइक बहुत नई नई चीजें डेली सीखने मिल रही है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग अ बिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स। सो मैं मेरा तो यही रीजन है टू बी ऑनेस्ट व्हाई आई एम इनटू द मार्केट, बिकॉज इट्स लाइक एवरी डे कुछ नया सीखने मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, till the last breath means something will be credited to my demat account of right। so पैसा ही एक अल्टीमेट मोटिवेशन। Agreed, agreed. Yeah, I think let's So not I over think we exaggerate should this। Yeah, complete this session. Thank you, Kashish, for joining. yeah, I think we have tried to cover everything that can be covered about the ERA and probably something about the market. So, thank you, Kashish, for joining today. It thank you was so nice much for talking to you. inviting me। It was really great on having on your show. Thank you so much. It really means a lot to me. This was the first time, of course, I was doing. Arey, we'll have much more times together. Thank you. Yes, thank you. Thank you for having Thank me you. here. Goodbye. Yes, goodbye. Thank you.